بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں آپ سب کی معلمہ سائمہ کنول ساتھ کین گرامر اسکول کی جانب سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے بچاؤ کی تمام تر احتیاطی تدابیر پر پابندی سے عمل کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، میں آپ سب کو اپنی جانب سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور آپ سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ عزیز طلباء، نظر آنے والی تصویر میں آپ کو پاکستان کے فوج کے سپاہی پریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج جدید اسلحے سے لیس ہے اور نہ صرف جدید اسلحے سے لیس ہے بلکہ پاکستانی فوج ایک ایٹمی طاقت بھی رکھتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستانی فوج سے ٹکر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں اس تصویر اور بتائی گئی معلومات کے ذریعے آپ نے آج کے موضوع کے بارے میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے اور ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو آئیے طلباء، اب ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے خط نویسی۔ آپ کو ایک غیر رسمی خط تحریر کرنا ہے۔ طلباء، غیر رسمی خط سے مراد وہ خط ہوتے ہیں جو ہم اپنے والدین، بزرگوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور دوستوں کو تحریر کرتے ہیں۔ تو طلباء، آپ نے اپنے دوست کے نام ایک خط تحریر کرنا ہے جس میں آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ عزیز طلباء، خط تحریر کرنے سے پہلے خط کے بارے میں چند توجہ طلب باتیں ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے، جو کہ خط تحریر کرنے میں آپ کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوں گی۔ خط کی تحریر ایسی ہونی چاہیے جیسے کاتب یعنی کہ خط لکھنے والا یعنی آپ، اور مکتوب جس کے لیے خط لکھا گیا ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیجیے، مرتبے کا لحاظ کیجیے، یعنی طلباء آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ آپ سے مرتبے میں بڑا ہے تو اس کے ادب کا لحاظ کیجیے، اگر چھوٹا ہے تو بھی آپ کو ادب و آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے طلباء، اب ہم باقاعدہ اپنے خط کے آغاز کی جانب چلتے ہیں اور خط کس طرح تحریر کیا جاتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خط تحریر کرنے کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، خط 3 اقتباسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے اقتباس میں آپ خط لکھنے والے کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوست کے خط کا ذکر کرتے ہیں جو اس نے آپ کو پہلے تحریر کیا تھا، اور اس خط میں آپ کو اس نے پاکستان کے مشہور مقامات کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی تھیں، جس کو پڑھ کے نہ صرف آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا بلکہ وہ معلومات جان کر آپ کو دلی خوشی بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد طلباء، آپ اپنے دوست کو پاکستانی فوج کا کردار اور اہمیت بتائیں گے کہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ عزیز طلباء، آپ اپنا خط تحریر کرتے ہوئے
अपने दोस्त को सलाम करने के बाद उसका हाल चाल मालूम करेंगे, उसकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे कि आपके दोस्त के मिजाज कैसे हैं, उसका हाल कैसा है। इसके बाद आप अपने दोस्त के पिछले खत का जिक्र करते हुए उसको बताएंगे कि जो मालूमात उसने आपको फराहम की थी उससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है और आप इसके लिए उसके बेहद ममनून हैं। फिर आप पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में अपने दोस्त को बताएंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज का नज़्मुल ऐन वतन की हिफाजत और सलामती है। अजीज़ तलबा, ये तो आप सब ही जानते हैं कि मुल्क के हर तरह के हालात में पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क की हिफाजत और सलामती और आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म अमल रहती है। पाकिस्तानी फ़ौज वतन की मोहब्बत से सरशार है। मुल्क के जैसे भी हालात हों, जैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, सैलाब, जैसा भी मौसम रहा हो, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा आगे बढ़कर मुल्क की हिफाजत और आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहती है। अजीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप ख़त का पहला इक़्तिबास तहरीर करने के काबिल हो गए हैं। अजीज़ तलबा, ख़त का दूसरा इक़्तिबास तहरीर करते हुए ख़त तहरीर करने का मकसद बयान करना होता है, इसलिए आप पाक फ़ौज के कारनामे और कुर्बानियाँ बयान करेंगे, अपने मकसद के हक़ में दलाइल पेश करेंगे, निशाने हैदर पाने वाले जाबाज सिपाहियों का जिक्र करेंगे। तो अजीज़ तलबा, जब आप अपना ख़त तहरीर करेंगे तो ख़त का मकसद बयान करेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। इसके लिए आप पाकिस्तानी फ़ौज के कारनामे बता सकते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे बड़ा कारनामा 1965 की जंग में भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर शिकस्त देना है। इसी तरह आप पाकिस्तान के जानिसार सिपाहियों की जान की कुर्बानियाँ पेश करने की मिसालें भी पेश कर सकते हैं। जिस तरह के राशिद मिन्हाज शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए मुल्क अजीज़ की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। मुजीबुर रहमान, जो कि भारत के हाथों बिक चुका था और पाकिस्तानी तैयारा भारत ले जाना चाहता था, लेकिन राशिद मिन्हाज शहीद ने वो तैयारा वहीं पर गिराकर अपनी जान का नजराना पेश किया और मुल्क अजीज़ की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दिया। इसी तरह आप निशाने हैदर पाने वाले शहीद जाबाज पाकिस्तानी सिपाहियों का जिक्र कर सकते हैं, जिनमें मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, तुफैल मोहम्मद शहीद, सवार लैंडस्लाइड शहीद और राशिद मिन्हाज शहीद का जिक्र कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, आप बता सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही वतन पर जान निसार करने से कभी भी गुरेज नहीं करते। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके मुल्क की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाया है। अजीज़ तलबा, तीसरे और आखिरी इक़्तिबास में आप अपने दोस्त को अपने इरादे और अज़ाइम से मुतला करेंगे, ख़त के ज़रिए मालूमात के तबादले की यकीन दहानी कराएंगे, दुआया जुमले और घर वालों को सलाम अर्ज़ करेंगे। उसके बाद अपने दोस्त से इजाज़त तलब करेंगे। अजीज़ तलबा, जब आप अपना ख़त तहरीर करेंगे तो ख़त के आखिरी हिस्से में अपने दोस्त को अपने इरादे यानी कि फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने के बारे में बताएंगे और अपने अज़ाइम के बारे में बताएंगे कि आप फ़ौज में शामिल होकर मुल्क अजीज़ की खिदमत करना चाहते हैं और मुल्क अजीज़ की हिफाजत करना आपका अज़्म है। इसके बाद आप अपने ख़त में तहरीर करेंगे कि जिस तरह आपके दोस्त ने आपको पाकिस्तान के मशहूर मकामात के बारे में तहरीर करके आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा किया और इसी तरह आपने पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार, अहमियत, उनके कारनामों और उनकी कुर्बानियों के बारे में बताकर अपने दोस्त की मालूमात में इजाफा किया।
इसी तरह एक दूसरे को खत लिख के मालूमात का तबादला आइंदा भी जारी रखेंगे। इसके बाद आप आपके दोस्त के घर वालों को सलाम दुआ कहेंगे और दोस्त के लिए दुआया जुमले अदा करेंगे, यानी कि उसे दुआएं देंगे कि आपका दोस्त खैरियत से रहे, सलामत से रहे, हर तरह की मुसीबतों से महफूज रहे। उसके बाद सबसे आखिर में आप अपने दोस्त से इजाज़त तलब करेंगे कि आपका दोस्त आपको ख़त बंद करने की इजाज़त दे। इस तरह आपका ख़त मुकम्मल हो जाएगा। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि तीनों इक़्तिबासात के दिए गए इशारों की मदद से आप एक मयारी ख़त तहरीर करने के काबिल हो चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए अब ख़त लिखने के चंद उसूलों के बारे में जान और समझ लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उसूल आपको एक मयारी ख़त तहरीर करने में बेहद मददगार साबित होंगे। ख़त लिखने के उसूल। नंबर 1, ख़त के मज़मून का 3 इक़्तिबासात पर मुश्तमिल होना। जुमले बार बार दोहराने से गुरेज करना। नंबर 3, ख़त तहरीर करते हुए कवायद और जुमलों की साख्त का ख्याल रखना। ख़त कम से कम 125 अल्फाज पर मुश्तमिल तहरीर करना। नंबर 5, सामने दिए गए खाके के मुताबिक ख़त तहरीर करना। अज़ीज़ तलबा, जब आप अपना ख़त तहरीर करेंगे तो इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि आपका ख़त 3 इक़्तिबासात पर मुश्तमिल हो। इससे ज़्यादा इक़्तिबासात तहरीर करने से गुरेज कीजिए। जुमले बार बार दोहराने से भी गुरेज कीजिए। जब आप अपना ख़त तहरीर करें तो उसमें कवायद और जुमलों की साख्त का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपका ख़त कम अज़ कम 125 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको सामने एक ख़त का खाका दिया गया है, आप उसी के मुताबिक अपना ख़त तहरीर करेंगे। जैसा कि खाके में सबसे ऊपर पता दर्ज है, फिर तारीख़ लिखी गई है, उसके बाद दोस्त को मुखातिब किया गया है, सलाम किया गया है। उसके बाद आप अपने ख़त का मज़मून तहरीर करेंगे जो कि 3 इक़्तिबासात पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद सबसे आखिर में आप लिखेंगे आपका दोस्त, या इसकी जगह आप अपना नाम भी तहरीर कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि अब आप एक मयारी ख़त लिखने के काबिल हो चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए अब अपने तफ़वीज़ कार की जानिब चलते हैं। तलबा, अपने दोस्त या सहेली के नाम कम अज़ कम 125 अल्फाज पर मुश्तमिल ख़त, दिए गए इशारात, ख़त के मज़मून का आगाज़ और बताए गए और समझाए गए इक़्तिबासात की मदद से तहरीर कीजिए और उस ख़त में अपने दोस्त या सहेली को बताइए कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अज़ीज़ तलबा, आइए अब अपने तफ़वीज़ कार के बारे में चंद अहम हिदायत को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि आपको ख़त लिखने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। नंबर 1, ख़त अपनी उर्दू कवायद की नोटबुक में तहरीर कीजिए। नंबर 2, ख़त तहरीर करते हुए कवायद और जुमलों की साख्त का ख़ास ख्याल रखिए। तारीख़ लाजमी दर्ज कीजिए। फ़हरिस्त लाजमी बनाइए। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि ख़त के आगाज़, इक़्तिबासात, इशारात और तफ़वीज़ कार में दी गई हिदायत के मुताबिक आप एक बेहतरीन ख़त तहरीर करने के काबिल हो चुके हैं। अब अपनी मौल्लिमा साइमा कंवल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आइंदा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।